everyone, this side Preet Kamal. I'm a lecturer at Mehchan Polytechnic College, Jalandhar. Today I will be sharing with you the subject details of electronic devices and circuits. But before starting with the subject details, I would like to share an important information that is related to Mission Fateh, the campaign run by Punjab government, and it says that we should wash our hands regularly, we should use sanitizer, mask, and along with that maintain the social distancing rules so that we could come out of this pandemic situation of COVID-19 as early as possible. So let's move on towards the subject details, that is the electronic devices and circuits. Today's topic of this subject is the transistor amplifier circuit with negative feedback. So in the last lecture we have discussed about what negative feedback is, what do you mean by the feedback in amplifier circuits, how the feedback in amplifier circuits it affects the circuit, right, and why we need that feedback, right. Sometimes what happens is why we need the feedback. The reason is because sometimes what happens is when we talk about a circuit, then there is a requirement of control, the control over the circuit. Why to control that? Sometimes because of the non-linearity of the components that we are using inside a circuit or an amplifier, sometimes they increase so much or sometimes they reduce. So when we take feedback, so that if something has been increased which should not be, then it should reduce, and if something has been reduced which should not be reduced, so it will increase with the help of the feedback. So feedback basically tells us कि हमें क्या हमारी आउटपुट पे एग्जैक्टली व्हाट डू वी नीड, हमें एग्जैक्टली अपनी आउटपुट पे चाहिए क्या और हमें मिल क्या रहा है। उन दोनों में अगर कोई स्लाइड सा डिफरेंस होगा तो हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे, हम उस चीज़ को फीडबैक जो है वो बोल सकते हैं, राइट। तो अगर उस डिफरेंस को हम लोगों ने कोप अप करना है, उसे कंपेंसेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग फीडबैक सर्किट्स जो है वो यूज़ करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में जब हम नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं तो वो किस तरह से वर्क करता है और हाउ दिस नेगेटिव फीडबैक इज़ इनकॉर्पोरेटेड। अगर आप देखें यहाँ पे तो ध्यान से अगर इस सर्किट को देखें तो इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द सिंपल ट्रांजिस्टर सिंगल एंडेड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। वी आर हैविंग दिस वोल्टेज हेयर, and then we are having this capacitor, the biasing resistors, the transistor, the RC output resistor, right. Then the RE and CE pair working as a bypass capacitor, this CE working as a bypass capacitor, right. So we are having all this circuit exactly same like that of the simple transistor circuit, but the difference if you will see here, the difference that you will see here is these two resistors R3 and R4 from where we have kept up our signal and sent it back to our इनपुट सप्लाई, राइट। सिर्फ यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है, जो हम लोगों ने ये दोनों रजिस्टर्स लगाए हैं हमारे R3 और R4, ये दोनों रजिस्टर्स हमारे लिए एक फीडबैक सर्किट का काम कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग अपनी फीडबैक का सर्किट सिग्नल जो है वो उठाते हैं और वो सिग्नल वो वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वापस अपनी इनपुट सिग्नल को, राइट। यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करें तो यहाँ से हमें क्या सिग्नल मिल रहा है, उस वोल्टेज सिग्नल वोल्टेज का नाम है VF, जिसे हम बोल रहे हैं फीडबैक वोल्टेज, जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वापस। तो ये जो फीडबैक वोल्टेज है, अगर हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके करना चाहें तो हम क्या यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों रजिस्टर्स जो हैं दे आर इन सीरीज़, ठीक है। ये दोनों रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ के अंदर हैं। यहाँ से यहाँ पे एक वोल्टेज हमें मिल रही है V0 जो कि इन दोनों के अक्रॉस है, दूसरी वोल्टेज जो हमें यहाँ मिल रही है दैट इज़ VF जो हम R3 के अक्रॉस लेकर फिर उसको वापस जो है वो भेज रहे हैं। इसका मतलब ये हो गई हमारी इनपुट वोल्टेज फॉर द फीडबैक, जो V0 है वो हमारी इनपुट वोल्टेज बन गई और जो VF है ये हमारी फीडबैक वोल्टेज बन गई, यानी कि आउटपुट वोल्टेज बन गई हमारी, राइट। तो अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो अगर आप लोग जानते हैं इस चीज़ को कि
अगर हम सीरीज़ रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं, दो रेजिस्टेंस अगर हम लोगों ने सीरीज़ में लगाई हैं और एक के अक्रॉस हम लोग आउटपुट को से V1 को हम लोग अगर चेक करना चाहते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने V जो है वो प्रोवाइड करी है, से ये R1 है, ये R2 है फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं तो यही सेम स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि VF जो कि यहाँ पे फीडबैक वोल्टेज अक्रॉस R3 है, वो किसके बराबर हुई, R3 divided by the total resistance in series, that is R3 plus R4 multiplied by V0, that is the input voltage जो यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज की तरह काम कर रही है V0। क्यों? क्योंकि जो फीडबैक है वो आउटपुट से इनपुट की तरफ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आउटपुट आपकी होगी वो एक तरह से उसके उस सिग्नल के लिए, उस सर्किट के लिए एक इनपुट का काम कर रही है। दैट इज़ वाई यहाँ से हम आउटपुट लेके उसको फीडबैक जो है वो कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे फीडबैक वोल्टेज जो है वो R3 ओवर R3 प्लस R4 मल्टीप्लाइड बाय V0 है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो बेसिकली जब हमने लास्ट सर्किट्स जो हम लोगों ने डिज़ाइन किए थे, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर्किट पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि हमारा जो फीडबैक वोल्टेज होती है वो हम लोग कैसे लिखते हैं, MV0 से। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इस तरह से जो सर्किट था वो बनाया था, जहाँ पे हम इस तरह से इससे आउटपुट ले रहे थे और यहाँ पे इस तरह से इसको इनपुट जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे जो सिग्नल था दैट वाज VS और यहाँ से हम लोग V0 जो था वो ले रहे थे, माइनस प्लस जो 180 के फेज डिफरेंस पे था, और यहाँ से वी वर कलेक्टिंग इट, और यहाँ पे मीन्स द आउटपुट ऑफ दिस फीडबैक सर्किट की आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा था, MV0 मिल रहा था। तो इसका मतलब कि VF जो है वो MV0 के बराबर है, राइट, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर में देखा था कि इट्स वैल्यू इज़ MV0 और यहाँ पे हम इसको वोल्टेज को नाम दे रहे हैं VF। तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। तो VF को अगर हम MV0 से रिप्लेस कर दें यहाँ पे तो क्या हो रहा है, R3 ओवर R3 प्लस R4 इंटू V0, ये सारा कुछ एज इट इज़ आएगा। तो अगर इन दोनों को हम इक्वेट करना चाहें आपस में तो V0 और V0 गेट्स कैंसल टू ईच अदर और बचा क्या हमारे पास, M, which is equal to R3 over R3 plus R4. That means M is what? M is our feedback factor, जो कि हमारी फीडबैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस फीडबैक की जो वैल्यू है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, R3 और R4 की वैल्यूज़ पे। तो अगर हम R3 और R4 की वैल्यूज़ को अपने हिसाब से डिसाइड कर लें तो उससे क्या होगा, हमें R3 और R4 की वैल्यूज़ के हिसाब से, कांस्टेंट वैल्यूज़ के हिसाब से हमें क्या मिल सकता है, हमें अपनी जो फीडबैक का फैक्टर है, जो फ्रैक्शन है, जिस फ्रैक्शन से हमारी आउटपुट जो है वो हमें मिल रही है, वो हमारे पास आ सकती है। हमें वो फीडबैक फैक्टर, हमें वो फीडबैक फ्रैक्शन मिल जाएगी कि कितना पोर्शन, मैंने क्या बताया था, फीडबैक फ्रैक्शन ऑफ फीडबैक क्या होती है कि फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज़ कनेक्टेड टुवर्ड्स द इनपुट, राइट। तो वो कितना पोर्शन होगा, वो कितनी फ्रैक्शन है, मतलब एग्जैक्टली 100% आउटपुट तो हम लोग इनपुट पे भेजेंगे नहीं, राइट, तो कुछ पोर्शन भेजेंगे। वो पोर्शन अब इस सर्किट के अंदर अगर हम इस तरह से फीडबैक का सर्किट लगाते हैं R3 और R4 के साथ, तो वो फीडबैक जो फ्रैक्शन है वो इन दोनों की वैल्यूज़ के हिसाब से डिसाइड हो जाएगी। तो मोस्टली जो M की वैल्यू है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के बीच में लाई करती है मोस्टली, 0.1, 0.2, 0.5, 0.4 कुछ भी हो सकती है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना उसको परसेंटेज भेज रहे हो, मीन्स 30% भेज रहे हो, 40% फ्रैक्शन भेज रहे हो, 50%, कितना अमाउंट जो है वो आउटपुट से इनपुट की तरफ कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो उसके ऊपर बेस्ड है ये चीज़। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है that is related to the effects of negative feedback on our amplifier circuits. That means कि अगर हम अपने amplifier circuits को negative feedback provide करते हैं तो उससे हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अच्छी मिलती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं अच्छी मिलती, या वी कैन से हेयर लाइक एडवांटेजेस क्या हैं नेगेटिव फीडबैक। अगर हम एम्पलीफायर सर्किट्स की बात करें तो हम हमेशा कहते हैं कि एम्पलीफायर सर्किट्स में हम लोग नेगेटिव फीडबैक्स यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, इट हैज़ मैनी ऑफ एडवांटेजेस। तो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक नाउ। So this is the advantages of negative feedback amplifiers.
The first advantage is it improves the gain stability. As we have discussed in the last lecture that when we talk about the gain, that then negative feedback actually reduces the gain. It could not increase it, but it has a property that whenever negative feedback is applied to the amplifier circuit, then whatever the gain it is receiving from the earlier stages, it will maintain that particular gain. That means if we have increased the gain with the help of voltage amplifier circuits, then at the last stage if we are using the negative feedback, then that gain will become stable at that place, and it will be stable with the help of the negative feedback. And let's see how वो ऐसे कैसे होता है. हमें पता है कि फीडबैक जो विद फीडबैक गेन है हमारा, वो किसके बराबर है, ए ओवर 1 प्लस एम ए इज़ द गेन विदाउट फीडबैक एंड एम ए इज़ द गेन विदाउट फीडबैक मल्टीप्लाइड बाय द फीडबैक फैक्टर. राइट, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये हमारी वैल्यू होती है गेन ऑफ द सर्किट विद फीडबैक. राइट, वो ए ओवर 1 प्लस एम ए के बराबर होती है. तो अगर हम एम और ए के मल्टीप्लिकेशन की यानी कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू को इस तरह से सिलेक्ट करें कि उसकी वैल्यू 1 के कंपैरेटिवली 1 प्लस एम ए है, अगर इसकी वैल्यू 100 होगी तो 100 प्लस 1 विल बी 101, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 100. तो अगर हम 100 के कंपैरेटिवली या 1000 के कंपैरेटिवली अगर 1 को इग्नोर भी कर देंगे तो उसका कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा हमारे सर्किट में. तो अगर हम एम ए की वैल्यू को इस तरह से डिसाइड करें कि उसकी वैल्यू 1 से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो क्या होगा, यहाँ पे हम 1 को निगलेक्ट कर पाएंगे और हमारी ये टर्म कहाँ रह जाएगी, ए ओवर एम ए के बराबर रह जाएगी. और अगर ए ओवर एम ए लिखेंगे तो ए एंड ए विल गेट कैंसल्ड आउट विद ईच अदर, तो वी विल गेट दैट फीडबैक वोल्टेज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ओनली अपॉन 1 बाई एम, दैट इज ओनली ऑन द फीडबैक फैक्टर. एंड अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि फीडबैक फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो इट इज स्टेबल बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंसेज एंड रेजिस्टेंस वैल्यू इज स्टेबल इन द सर्किट R3 ओवर R3 प्लस R4. राइट, सो दैट इज वाई अगर ये फैक्टर स्टेबल है तो इसका मतलब जो फीडबैक गेन विद फीडबैक है वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्टेबल हो गया. तो दैट मीन्स अगर हम नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं एम्पलीफायर सर्किट्स के अंदर तो इट विल इम्प्रूव द गेन स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी ऑफ द गेन को इम्प्रूव करता है. राइट, जो सेकेंड एडवांटेज है आपके नेगेटिव फीडबैक की अगर हम उसको एम्पलीफायर सर्किट्स में यूज़ करते हैं, दैट इज़ द रिड्यूस्ड डिस्टॉर्शन एंड नॉइस. तो अगर उसमें कोई सर्किट के अंदर कोई भी नॉइसेस, कोई भी डिस्टॉर्शन, कोई भी अनवांटेड सिग्नल्स अगर इन्वॉल्व हो चुके हैं तो वो अनवांटेड सिग्नल भी जो हैं आप लोगों के वो क्या हो सकते हैं, वो अनवांटेड सिग्नल जो हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस feedback, negative feedback. Right, so how these will be reduced is, let's see. यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया. राइट, यहाँ पे एक समर लगाया या वी कैन से, जहाँ पे एक तरफ से पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, इधर से नेगेटिव सिग्नल आ रहा है, तो वो एडअप हो रहा है दोनों आपस में. तो यहाँ पे इस सिग्नल के अंदर फॉर एग्जांपल इनपुट साइड के ऊपर कोई डिस्टॉर्शन जो है वो फॉर एग्जांपल आ जाती है, अगर वो डिस्टॉर्शन, राइट, तो वो एम्पलीफायर सर्किट के अंदर जाती है. फिर यहाँ पे जो टोटल डिस्टॉर्शन कंसिडर हो रही है वो कौन सी हो रही है, डिस्टॉर्शन विद फीडबैक. यहाँ पे वो अकेली डी थी, विदाउट फीडबैक थी. यहाँ पे जब वो एम्पलीफायर सर्किट से पास हो गई तो उसके बाद उसने जब वापस फीडबैक सर्किट के थ्रू आना है तो यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन जनरेट हो रही है दैट इज़ विद फीडबैक डिस्टॉर्शन जनरेट हो रही है. तो ये डिस्टॉर्शन अगर हमारे फीडबैक सर्किट के अंदर जाती है जिसकी वैल्यू 1 है, ये एम्पलीफायर सर्किट है, ये फीडबैक सर्किट है, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, सिर्फ आई हैव शोन विद द सिंबल्स दैट ए रिप्रेजेंट्स द गेन एंड एम हेयर रिप्रेजेंट्स द फीडबैक फैक्टर. राइट, तो यहाँ से अब ये जो एम है वो फीडबैक फैक्टर है जिसके थ्रू आपका ये जो सिग्नल है वो वापस जा रहा है. तो अब यहाँ पे सिग्नल क्या आ रहा है, एम्पलीफायर का सर्किट सिग्नल आ रहा है. यहाँ पे A इंटू डी एफ बी यानी कि डिस्टॉर्शन विद फीडबैक वो फीडबैक सर्किट के अंदर भी जा रहे हैं. तो यहाँ पे जब बाहर निकलेंगे तो वो एम ए डी एफ बी बन जाएगा. राइट, यानी कि तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई आपस में. अब ये तीनों के तीनों सिग्नल्स कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिवली इस चीज़ के अंदर
एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या पड़ी हुई थी, डिस्टॉर्शन पड़ी हुई थी विदाउट फीडबैक वाली, तो उसमें से माइनस क्या हो रहा है, एम ए डी एफ बी। तो इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट पे जो डी एफ बी जो विद फीडबैक डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगी वो एक्चुअली किसके बराबर है, जो आपकी डिस्टॉर्शन यहाँ पे आ रही है माइनस, यहाँ से माइनस होके जो हमारी टर्म बाद में बनी विद फीडबैक वाली, जो आपके फीडबैक फैक्टर के साथ जो टर्म बनी वो दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। तो हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो डी एफ बी और डी एफ बी यहाँ पे कॉमन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये वाली टर्म को उठा के इस साइड पे लेके जा सकते हैं, इक्वल टू की दूसरी साइड पे। जब हम इसे इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। अब जब यहाँ पे ये प्लस हो गया तो इट बिकम्स डी एफ बी प्लस एम ए डी एफ बी, दैट बिकम्स इक्वल टू द D, दैट इज द डिस्टॉर्शन। अब इन दोनों में से डी एफ बी कॉमन निकल आया तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस एम ए मल्टीप्लाइड बाय डी एफ बी दैट इज इक्वल्स टू डी। तो अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टॉर्शन विद फीडबैक कैलकुलेट करनी है, डिस्टॉर्शन विद फीडबैक, तो हम क्या करेंगे, ये जो उसके साथ फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है उसे डी के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये फैक्टर इधर चला जाएगा तो हमारे पास डी एफ बी की वैल्यू आ जाएगी। तो दैट मीन्स आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्टॉर्शन विद फीडबैक is equal to D, that is distortion without feedback divided by 1 plus MA। यानी कि जो आपकी with feedback, अगर आप feedback सर्किट लगाते हो उस टाइम पे जो आपकी डिस्टॉर्शन यहाँ पे जनरेट हो रही है सर्किट के अंदर वो 1 plus MA टाइम्स रिड्यूस्ड है डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक के कंपैरेटिवली, बिकॉज इट इज़ बीइंग डिवाइडेड। तो वो यहाँ पे डिस्टॉर्शन के साथ ये टर्म डिवाइड हो रही है, इसका मतलब जो डी एफ बी की वैल्यू है इट इज़ लेस। तो इट इज़ क्लियर हेयर दैट द डिस्टॉर्शन एंड नॉइस आर गेटिंग रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। ओके, अगर हम नेगेटिव फीडबैक की बात करें, द थर्ड एडवांटेज इज इंक्रीज द इनपुट इम्पिडेंस, राइट। तो जो नेगेटिव फीडबैक सर्किट जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके केस के अंदर हमारी जो इनपुट इम्पिडेंस है जो हमें हाई चाहिए होती है वो भी इंक्रीज होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, दैट दिस इज VS, दैट इज द इनपुट सिग्नल वोल्टेज, राइट। तो ये इनपुट सिग्नल वोल्टेज है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्मल जो सर्किट हम लोग फीडबैक का बनाते हैं वही सेम सर्किट है जैसे हम लोगों ने कल बना के लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था वही सेम सर्किट डिज़ाइन किया है। VS यहाँ पे है, VI इज इक्वल्स टू VS माइनस एम वी नॉट यहाँ पे है, ठीक है, V नॉट यहाँ पे, एम वी नॉट यहाँ पे आ रहा है, एंड ऑल द सर्किट इज सेम। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमने करंट और जो आपके इम्पिडेंसेस हैं वो शो की हैं कि हेयर द इम्पिडेंसेस विद फीडबैक इम्पिडेंस जेड इन एफ बी है, अगर विदाउट फीडबैक इम्पिडेंस की बात करते हैं तो दैट विल बी जेड इन ओनली, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे करंट जो है आई नॉट आउटपुट साइड पे फ्लो कर रहा है, आई करंट जो है वो इनपुट साइड के ऊपर फ्लो कर रहा है, तो एग्जैक्टली द सेम। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जेड इन फीडबैक, जो विद फीडबैक आपका इम्पिडेंस है, इनपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक, उसकी वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली जो आपका इम्पिडेंस होता है वो वोल्टेज और करंट का रेशो होता है, राइट। तो अगर हम लोग विद फीडबैक की बात कर रहे हैं तो विद फीडबैक मीन्स ये पूरा का पूरा सर्किट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है विद फीडबैक में। तो जेड इन एफ बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, वी एस ओवर आई आई। वी एस मतलब जो इनपुट पे हम लोग मेन सप्लाई दे रहे हैं डिवाइडेड बाय द करंट, इनपुट करंट जो हम लोग दे रहे हैं जहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी, ठीक है, तो वो आएगा। तो अगर हम वी आई की बात करें, वी आई तो वो किसके बराबर है, वी एस माइनस एम वी नॉट, दैट वी ऑल नो, वो हमें पता है, ठीक है। और अगर हम अकेले जेड इन की बात करें, मतलब जो एम्पलीफायर सर्किट का मेन अकेला जेड इन है वो किसके बराबर होगा, वी आई डिवाइडेड बाय आई आई के बराबर होगा, क्योंकि जो जेड इन है वो इस एम्पलीफायर सर्किट के अंदर होगा, जो जेड इन एफ बी है वो पूरे सर्किट का कंसिडर करेंगे हम लोग। तो जेड इन की वैल्यू किसके बराबर होगी, वी आई ओवर आई आई। वी आई मीन्स जो वोल्टेज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इस एम्पलीफायर सर्किट को, और करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, राइट। और हमें पता है कि जब हम वी नॉट की बात करते हैं तो जो वी नॉट है यहाँ पे, वी नॉट जो है वो किसके बराबर होता है, इफ़ हेयर वी विल टॉक अबाउट वी नॉट, तो वो किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू ए इंटू दिस वी आई। वी नॉट जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर है, गेन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट वोल्टेज, बिकॉज हमें पता है कि जो गेन होता है वो वी नॉट ओवर वी आई के बराबर होता है, राइट। मतलब आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज दैट इज इक्वल्स टू गेन। तो अगर हम वी नॉट की बात करें तो वी कैन राइट इट ए वी आई।
वी नॉट इज इक्वल्स टू ए वी आई, तो इसके बराबर हो गया वी नॉट इज इक्वल्स टू ए वी आई। अगर हम ये वाली वैल्यू वी नॉट इज इक्वल्स टू ए वी आई को यहाँ पे वी नॉट की जगह पे अगर हम इसे पुट कर दें तो क्या होगा, दिस इक्वेशन व्हाट विल इट बिकम, वी आई एज इट इज, वी एस एज इट इज, माइनस एज इट इज, एम एज इट इज, वी नॉट की जगह पे हमने लिख दिया ए वी आई, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी आई और वी आई इन दोनों में वी आई कॉमन है, तो इस टर्म को उठा के अगर हम इस साइड पे ले आए तो यहाँ पे माइनस थी, यहाँ पे ये टर्म प्लस की हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये टर्म प्लस की हो जाएगी तो इट विल बी इक्वल टू वी एस, ये एज इट इज इधर रह जाएगा। अब वी आई और वी आई में से हमने क्या किया, कॉमन निकाल दिया वी आई को, वी आई कॉमन निकाला तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 और इसकी जगह पे आ जाएगा एम ए, तो दिस बिकम्स वी आई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एम ए दैट इज इक्वल्स टू वी एस। अगर हम इन दोनों को आई और आई दोनों साइड पे आई से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, वी आई ओवर आई बन जाएगा जेड इन और वी एस ओवर आई बन जाएगा जेड इन एफ बी, तो ये बन जाएगा यहाँ पे जेड इन, ये बन जाएगा यहाँ पे जेड इन एफ बी। तो अब आप अगर ध्यान से देखो इस टर्म को तो यू कैन सी कि जो जेड इन विद फीडबैक है यानी कि इनपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक जो है वो किसके बराबर है, विदाउट फीडबैक वाली इनपुट इम्पिडेंस के साथ 1 प्लस एम ए वाली टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, राइट। तो अगर एक चीज़ के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो दैट मीन्स जो उसकी आउटपुट है वो इंक्रीज कर रही है। सो जेड एन एफ बी जो है वो जेड एन के कंपैरेटिवली 1 प्लस एम ए टाइम्स ज़्यादा होगी। तो नेगेटिव फीडबैक से हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हमारे पास ये मेन 3 बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा भी हमारे पास 2 बेनिफिट्स और हैं, वो हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टू यू, यू हैव बीन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द circuits and the amplifier and the advantages of negative feedback when we use them in the amplifier circuit. I hope you all are clear about all these things, right? So if still you will be having any doubts, we will be taking care of them in the live sessions, and do like and comment on my video so that I could come to know that you have gone through it very well. Till then, take care, bye bye.